Hello everyone, all of you are welcome again at my YouTube channel Start English. Dear ones, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में वर्ब का मीनिंग एंड मेन टाइप्स वर्ब के डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम वर्ब का एक इम्पोर्टेंट पार्ट मॉडल ऑक्सिलियरीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, साउंड ऑफ द वर्ड मॉडल। मॉडल वर्ड को ट्रांसक्राइब करते समय हम म औ ड ल मॉडल साउंड का यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो हैव अनदर वर्ड मॉडल MODEL एंड साउंड ऑफ मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडल मॉडल। यहाँ हम ओ मोनोफ्थोंग का यूज़ करते हैं। मॉडल मीन्स ए कॉपी ऑफ समथिंग, जिसे हम हिंदी में नमूना कह सकते हैं, ए कॉपी ऑफ समथिंग। बट मॉडल मीन स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स that are used to show different states of our mood. For example, ability, capacity, probability, possibility. These concepts are expressed by using modal auxiliaries. In English, can, could, may, might, will, would, shall, should, must and ought to are basic modal auxiliaries, also known as defective verbs, as these verbs are not complete in conjugation like ordinary verb. These verbs have only single form, not ing, ed. We never use s or es, so these verbs are also known as defective verbs. And in English, dare, need and used to are also used sometimes as modal auxiliaries. So these three are known as semi-modals or marginal auxiliaries. As we use these three auxiliaries sometimes as modal auxiliaries and sometimes as main verb in English. So semi-modals. Now about modal auxiliaries. Now we shall discuss characteristics of modal auxiliaries. First of all, these modal auxiliaries are used as helping verbs, not as main verb. ये modal auxiliaries हमेशा सहायक क्रिया की तरह यूज होती हैं, मुख्य क्रिया की तरह नहीं। For example, we say patient should take medicine. Patient should take medicine. In this sentence, should is used as helping verb and modal, and take is main verb here. So these modal auxiliaries are used as helping verbs. Second one, we never use do, does in present and did in past to ask questions. Generally हम प्रेजेंट टेंस में प्रश्न बनाने के लिए डू डज का और पास्ट में डिड का यूज
करते हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज वाले सेंटेंसेस में हम डू, डज और डिड का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई गो नाउ, मे आई गो नाउ। In this sentence, may is used as helping verb as well as to form this question. May I go now? Can he lift this heavy box? Can he lift? Can modal used as helping verb also to form this question. Can he lift this heavy box? So we never use do, does and did. Third one, negative sentences are formed by adding not to modals. For example, you cannot park car here. You cannot park car here. नोट मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में ही जुड़ जाता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज होती है। हमें नोट लगाने के लिए अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट वन, यू शुडंट वेस्ट योर टाइम। यू शुडंट वेस्ट योर टाइम। नोट इज यूज्ड विद शुड, दैट इज मॉडल ऑक्सिलरी हियर। नेक्स्ट वन, मॉडल्स। नेवर एड s or es with modals, only single form। जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ s और es फॉर्म का यूज करते हैं, बट इन मॉडल वी नेवर यूज s और es with मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, he can climb any tree। he, third person singular, we are using can as modal auxiliary and climb। हम climb में यहाँ पे s और es का यूज नहीं करते। मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हम कभी भी s और es वर्ब की फॉर्म का यूज नहीं करते। नेक्स्ट वन, मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू, एक्सेप्ट ought to एंड used to। ought to और used to, इन दो मॉडल ऑक्सिलरीज के अलावा हम सभी मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद बेयर इन्फिनेटिव बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और ought to और used to में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, he can climb any tree। इट मीन यहाँ पे कैन मॉडल के बाद climb बेयर इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली, नॉट फॉलोइंग बाय टू। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, बल्कि सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और ought to और used to में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट in my childhood।
I used to प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ought to, used to के बाद टू इन्फिनेटिव और बाकी सभी मॉडल ऑक्सिलरीज में बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, नो प्रॉपर पास्ट टेंस। हालांकि हमारे पास 4 पास्ट फॉर्म है मॉडल की, माइट, कुड, वुड, शुड, but these past form only have restricted use। इसका प्रॉपर पास्ट टेंस में यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, यहाँ पे यदि हम इस मे की बजाय इसको पास्ट में ले जाते हैं, इट माइट रेन टुडे, यहाँ मे की जगह यदि हम माइट का यूज करते हैं तो पास्ट फॉर्म में चेंज होने के साथ साथ इसकी मीनिंग में चेंज हो जाता है। जैसा कि मे का यूज हम जनरल पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं और माइट का यूज हम रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। यहाँ बारिश होने की सामान्य संभावना है, जबकि यहाँ बारिश होने की कम संभावना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन मॉडल की पास्ट फॉर्म का प्रॉपर यूज नहीं होता। नेक्स्ट वन, नो इन्फिनिटिव्स or participle। It mean we never use ing form with modals। मॉडल्स के साथ कभी भी हम ing फॉर्म का यूज नहीं करते। मॉडल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस एंड दीज 3 नीड, डेयर एंड यूज टू आर नोन एज सेमी मॉडल्स and marginal auxiliaries, as these are used sometimes as modal auxiliaries। For example, in the sentence he doesn't dare to oppose his father। In second one, he daren't oppose his father। फर्स्ट सेंटेंस में डेयर मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है और सेकंड सेंटेंस में डेयर हेल्पिंग वर्ब मीन मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट वन, यू नीडंट गो देयर एंड यू डोंट नीड टू गो देयर। फर्स्ट सेंटेंस में नीड हेल्पिंग वर्ब इट मीन मॉडल की तरह यूज हुआ है और सेकंड सेंटेंस में नीड एज मेन वर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट वन, यूज टू। आई यूज्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी in ME and I used to speak English in my childhood।
इन दो सेंटेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस में यूज्ड मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है एंड सेकंड सेंटेंस यूज टू यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह यूज हुआ है। दीज आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। नाउ वी शैल डिस्कस use of modal auxiliaries in detail. First of all, use of can कि इंग्लिश में हम can का यूज कब और कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट यूज इसका है टू शो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यही can का मेन यूज है कि हमारी योग्यता, हमारी समर्थता, शक्ति और ताकत को दिखाने के लिए हम वर्तमान और फ्यूचर में कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन मेक हर ओन ड्रेस। शी कैन मेक हर ओन ड्रेस। वह अपनी खुद की ड्रेस बना सकती है। किसी काम को कर सकना। शी नोज how to make her dress. In the same way, I can solve this puzzle. I can solve this puzzle. इस पजल को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कर सकने का भाव कैन से अभिव्यक्त करते हैं। In the same way, he can swim across the river. वह रिवर के अक्रॉस स्विम कर सकता है, तैर सकता है। It means he has that ability to swim across the river. This one is the main use of कैन। हमेशा एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ वाले सेंटेंसेस में प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हम कैन का यूज करते हैं। सेकंड वन, टू शो प्रोहिबिशंस, मना करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट पार्क कार हियर। आप यहाँ कार पार्क नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम दिस गार्डन। आप इस गार्डन से फूल नहीं तोड़ सकते। मना करने के लिए भी हम कैन के साथ नोट का यूज़ करते हैं। थर्ड वन, टू शो theoretical possibility, also known as occasional possibility. For example, electricity can be dangerous. इसमें इलेक्ट्रिसिटी का नेचर डेंजरस का है, तो इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है वो ओकेजनली डेंजरस हो सकती है, तो इसलिए हम इसमें भी कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, फायर कैन बी डेंजरस। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडियन रेलवेज कैन बी इम्प्रूव्ड। इंग्लिश में थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। जनरल पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं, बट थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए हम
कैन का यूज करते हैं किसी की सैद्धांतिक संभावना को बताने के लिए। नेक्स्ट यूज इज टू शो पॉसिबिलिटी, स्पेशली इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़ ऑफ his murder cannot be true. News of his murder cannot be true. Who can be there at the door? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए या नोट के साथ पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए भी हम इन द लास्ट टू शो परमिशन इंडिकेटिंग फ्रीडम, फ्रीडम के साथ किसी परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो नाउ, you can park car here। इसमें हम हमेशा परमिशन देने के लिए ज़्यादातर कैन का यूज करते हैं। परमिशन के लिए मे का यूज भी होता है, लेकिन मे इज मोर फॉर्मल देन कैन। कैन से मे ज़्यादा फॉर्मल यूज दर्शाता है। इस तरह से हम कैन मॉडल का यूज मुख्यतः एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर एंड स्ट्रेंथ के लिए, प्रोहिबिशंस के लिए, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए और पॉसिबिलिटी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए और टू शो परमिशन के लिए भी करते हैं। आफ्टर कैन, नाउ यूज ऑफ could. Could is past form of can, as can is used to show ability, power, strength and capacity in present and future. In the same way, to show ability, power, strength and capacity in past, we use could. For example, I could jump over this wall in my childhood। मैं बचपन में इस दीवार के ऊपर से कूद सकता था। ये सेंटेंस ये दिखाता है कि उस दीवार के ऊपर से कूदने की योग्यता आप में थी, पर ये काम आपने किया या नहीं किया, ये इस सेंटेंस से हमें पता नहीं चलता। तो पास्ट एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ और कैपेसिटी, इनको दर्शाने के लिए हम हमेशा कुड मॉडल का यूज करते हैं। इन द सेकेंड यूज, टू इंडिकेट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को शो करने के लिए भी हम कुड मॉडल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड I have some more bread? Could I have some more bread? इस सेंटेंस में इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम मोस्टली मे का यूज़ करते हैं, जबकि इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं। कुड आई हैव सम मोर ब्रेड, कि क्या मैं कुछ और ब्रेड ले सकता हूँ। तो ये इनफॉर्मल परमिशन अपने फ्रेंड सर्किल इत्यादि से वो ले रहा है, तो यहाँ भी हम कुड का यूज करते हैं। इन द नेक्स्ट, टू शो रिक्वेस्ट्स, रिक्वेस्ट्स को शो करने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू पोस्ट दिस लेटर
for me. Could you post this letter for me? प्लीज़ इस लेटर को पोस्ट करें. इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज टू शो जनरल परमिशन इन पास्ट. पास्ट में जनरल परमिशन को शो करने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं, और वो कुड का यूज़ वर अलाउड टू, ऐसा करने की अनुमति थी के मीनिंग के अर्थ में होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑन संडेज वी कुड गेट अप लेट. ऑन संडेज को हम लेट उठ सकते थे. ऐसा करने की परमिशन हमें पास्ट में थी, इसके लिए भी हम कुड का यूज करते हैं. नेक्स्ट यूज ऑफ द कुड टू रिप्लेस मे, माइट बी. इट मीन टू शो पॉसिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, द फ्लाइट मे, माइट, could be late by fog. फ्लाइट मे, माइट, कुड बी लेट बाई फॉग. फॉग के कारण फ्लाइट का लेट होने को दर्शाने के लिए भी हम मे, माइट, इसकी जगह पे हम कुड का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट यूज ऑफ कुड इज टू शो अनरियल सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट. For example, if I had money, I could buy a car. If I had money, I could buy a car. Second type of the condition. इसमें भी हम कुड का यूज सेकंड क्लॉज में कर सकते हैं. तो आज हमने कैन और कुड के जनरल यूज डिस्कस किए हैं. इन नेक्स्ट लेसन वी शैल डिस्कस सम मोर मॉडल ऑक्सिलरीज इन डिटेल. So subscribe this channel and continue your preparation and study for your coming exam. जैसा कि कहते हैं कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं. एक बार चलने का हौसला तो कीजिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं. आप कंटिन्यू रहें. कंटिन्यू रहने से आप निश्चित तौर पे एक दिन सफल होंगे. थैंक्स, दैट्स ऑल.